ماحول کا مطالعہ حصہ 2 تاریخ اور زمانے کا تصور پارٹ 2۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم تاریخ اور زمانے کا تصور اس کا آگے کا پارٹ دیکھیں گے۔ زمانہ شماری اور زمانہ شماری کے طریقے۔ زمانہ شماری یعنی زمانے کا طول ناپنا، زمانے کو شمار کرنا جسے کہیں گے۔ ہم کس طرح سے زمانے کا طول ناپتے ہیں؟ تو زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں معلوم اکائیاں ہیں جو اس طرح ہیں: سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، 15 روزہ، مہینہ، سال، صدی اور ہزارہ یعنی الفی۔ تو ان سب میں سب سے چھوٹی اکائی ہے سیکنڈ۔ تو دنیا بھر میں زمانہ شماری کے کئی طریقے موجود ہیں۔ ان سب میں عیسوی سنہ کا طریقہ زیادہ رائج ہے یعنی سب سے زیادہ مقبول ہے، چلتا ہے۔ عموماً تاریخ اس طرح لکھی جاتی ہے: متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب، اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد۔ لفظ تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے، یعنی تاریخ کا ہم معنی لفظ کیا بتایا گیا؟ یہاں پر دن بتایا گیا۔ زمانہ شماری کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عیسوی سنہ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہوئی۔ کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر دیکھیے، کوئی ایک ایسا خاص واقعہ ہوتا ہے، اس کی یادگار کے طور پر نئے زمانے شماری یعنی کیلنڈر کی ابتدا کرنے کی روایت بہت زمانے سے رائج تھی۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں گے تو کسی بہادر راجا کی تاج پوشی کا واقعہ، جس میں اب چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاج پوشی سنہ 1674 میں ہوئی۔ اس واقعے کے لحاظ سے انہوں نے کیا کیا؟ راجیہ ابھیشیک شک اس سنہ کی شروعات کی تھی۔ کیونکہ شک کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی انہوں نے اس طرح سے کیا کیا تھا؟ راجیہ ابھیشیک سنہ شروع کیا تھا۔ اب نیچے دیکھیے، یہاں پر ایک خطی تقسیم میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے زندگی کے اہم واقعات کب سے کب تک کے؟ سنہ 1630 سے لے کر سنہ 1680 تک کے کچھ واقعات یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ جیسے کہ پیدائش 1630 میں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے سنہ 1645 میں سوراج کا عہد کیا، 1666 میں انہوں نے آگرہ سے چھٹکارا لیا، سنہ 1674 میں انہوں نے نیا سنہ راجیہ ابھیشیک کی شروعات کی، اور 1680 میں ان کا انتقال یعنی ان کی موت ہو گئی۔ یہ تھی یک خطی تقسیم جس میں شیواجی مہاراج کے زمانے کو بتایا گیا تھا۔ اب دیکھیے اسی طرح سے شالی واہن شک اور وکرم سنوت بھی بھارت میں رائج کیلنڈر ہیں۔ دیکھو بچوں، کیلنڈر کے نام ہیں شالی واہن اور وکرم سنوت۔ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ والے جب بہت ظلم کر رہے تھے ان پر، تو اللہ کے حکم سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اسی ہجرت کو بنیاد بنا کر ہم نے سنہ ہجری کی ابتدا کی ہے۔ بھارت میں پارسی فرقے کے لوگ زمانہ شماری کا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اسے شہنشاہی سنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر پارسی لوگوں کا جو زمانہ شماری کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شہنشاہی سنہ، اور ہمارا ہے سنہ ہجری۔ اس طرح سے اگلا پوائنٹ ہے تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ۔ ہم پہلے سبق میں معلوم کر چکے ہیں کہ تاریخ کیا ہے؟
माजी के वाक़यात का इल्म देने वाला साइंस है। ये हम अच्छे से जान चुके हैं। हमने ये भी जान लिया है कि जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है उसे हम ज़माने माजी कहते हैं। माजी ही तारीख़ का ज़माना है। देखिए माजी क्या है, ये तारीख़ का ज़माना है, जिसमें तारीख़ में हम क्या करते हैं, माजी का सारा निचोड़ देखते हैं, माजी में क्या क्या हुआ था ये मालूम करते हैं। वसी तौर पर देखा जाए तो तारीख़ का ज़माना हमारे निज़ाम शमसी के वजूद में आने के ज़माने तक पीछे जाता है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए, हमारा निज़ाम शमसी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया। हमारी ज़मीन इस निज़ाम शमसी का एक सैयारा है। इसके मानी ये हुए कि ज़मीन भी तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई थी। अब देखिए ज़मीन की पैदाइश तक पीछे जाने वाले 4.5 अरब बरसों के इतने तवील ज़माने को फ़ौरन समझ लेना आसान नहीं है, उसे दर्जा बा दर्जा समझना पड़ता है। इस गर्ज से इसलिए तारीख़ के ज़माने को तकसीम किया गया है। इसमें ख़ास तौर पर 2 मरहले तस्लीम कर लिए गए हैं। नंबर 1 ज़माने मा क़ब्ल तारीख़, नंबर 2 तारीख़ का ज़माना। सबसे पहले देखते हैं ज़माने मा क़ब्ल तारीख़। जिस ज़माने की तारीख़ लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते उस ज़माने को ज़माने मा क़ब्ल तारीख़ कहा जाता है। मतलब तहरीरी सबूत, लिखे हुए सबूत मौजूद नहीं हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ज़माने मा क़ब्ल तारीख़। मा क़ब्ल का मतलब पहले का। नंबर 2 तारीख़ का ज़माना। जिस ज़माने की तारीख़ लिखने के लिए तहरीरी सबूत मौजूद होते हैं, यानी लिखे हुए सबूत मौजूद हैं, उस ज़माने को तारीख़ का ज़माना कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं ज़माना शुमारी का साइंसी तरीक़ा और ज़माने का तय्युन करना, यानी ज़माने को तय करना। जब हम ये तय करते हैं कि आज कौन सा दिन है, कमरी तारीख़ कौन सी है या कौन सी तारीख़ है, उस वक्त गोया हम ज़माना शुमारी करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ज़माने को नाप रहे हैं, हम यहाँ ज़माने को शुमार कर रहे हैं। क्या देखकर, कौन सी तारीख़ है, कौन सा दिन है, ये देख रहे हैं, यानी हम ज़माना शुमारी कर रहे हैं। हमने देखा कि ज़माना शुमारी के कई तरीके हैं। इन तरीक़ों में ज़माना शुमारी आगे या पीछे की जानिब बितरतीब हम उसकी ज़माना शुमारी कर सकते हैं। मसलन जब हम ये कहते हैं कि ये जून का महीना है, देखिए क्या कहते हैं, जून का महीना है, तब कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता महीना मई था और आने वाला महीना कौन सा होगा, जुलाई होगा। उसी तरह अगर आज 10 तारीख़ है तो हम कहेंगे कि कल 9 तारीख़ थी और आने वाली तारीख़ क्या होगी, 11 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़माना शुमारी के तरीक़े में हम ज़माने का तूल नापते हैं। क्या नापते हैं, ज़माने का तूल, यानी ज़माने की लंबाई, कितना लंबा है ज़माना, उसको नापने के अलग अलग ये इकाइयाँ मैं आपको बताई। तो इस तरह से ईसवी सना के शुरू होने से पहले के ज़माने में होने वाले वाक़यात का मुताला करते वक्त हम कहते हैं क़ब्ल मसीह का फ़लाँ साल। देखिए ईसवी सना शुरू होने से पहले का ज़माना कौन सा था, क़ब्ल मसीह था, यानी मसीह से क़ब्ल, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना, यानी क़ब्ल का ज़माना। तो उस वक्त हम क्या बताते हैं, सना ईस्वी के शुरू होने से पहले का वाक़या कुछ बताना रहता है तो कि ये वाक़या फ़लाँ वाक़या कब का है, क़ब्ल मसीह साल का है। इनमें से बाज़ वाक़यात की मालूमात हमें ज़मीन में दफन शुदा सबूतों की बुनियाद पर हासिल करना होती है। ये सबूत में क्या होता है, अक्सर अशिया और इमारतों के बाक़ियात की शक्ल में होते हैं, यानी बाक़ियात यानी बचे हुए हिस्से जो भी ज़मीन में दफन हो गए थे, बाद में हम उसे बचे हुए हिस्से को निकालते हैं और उस पर तहकीक करते हैं, तो वो बाक़ियात।
तो इन बाक़ियात की बुनियाद पर हज़ारों साल पहले के वाक़यात का तयन करना साइंसी तरीके अपनाने की वजह से मुमकिन होता है। यानी वो जो बाक़ियात हमको मिले हैं उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यानी ये सब चीज़ें करना क्या है, ये साइंसी तरीका है। और वो सब टेस्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। अब ज़मीन के नीचे क्या होती है, देखिए मिट्टी की तहें एक के ऊपर एक जमा होती रहती हैं। मिट्टी की इन तहों और इन तहों में मिलने वाले बाक़ियात के बारे में यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका ज़माना फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख का है। नहीं बता सकते हम। जैसे ही चीज़ हमें मिली, ज़मीन से हमने निकाली और बता दिया कि ये हाँ ये इस ज़माने की है, तो इस तरह से अंदाज़न हम नहीं बता सकते। लेकिन आज से तकरीबन इतने साल पहले इस तरह इस ज़माने को नापना मुमकिन होता है। इस तरीके को ज़माना शुमारी का तरीका कहते हैं। ज़माना शुमारी के लिए कार्बन 14 तरीके से तज्ज़िया और लकड़ी की परतों से तज्ज़िया जैसे कई साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर है कार्बन 14। ये क्या चीज़ है देखेंगे हम। कार्बन 14 एक तरीका है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, 60,000 साल तक की कदीम पुरानी अशिया की उम्र का तयन कर सकते हैं। यानी वो कितनी पुरानी है ये उस चीज़ के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। तो ये तरीका जो ढूंढ निकाला था वो था साइंसदान वेलार्ड लेबी। साइंसदान का नाम क्या था, वेलार्ड लेबी। उसने ये तरीका कार्बन 14 का तरीका दरियाफ़्त किया था। तो वेलार्ड लेबी जो थे वो सना 1908 में पैदा हुए थे और सना 1980 में उनका इंतकाल हो गया। तो देखिए बच्चों ज़माने के तयन का तरीका क्या है देखेंगे हम। कार्बन 14 ये क्या है, तो कार्बन 14 ये जुज़ एक अंसर है जो तमाम जानदारों के जिस्म में मौजूद होता है। जानदारों की मौत के बाद क्या होता है, उनके बाक़ियात में, उनके जो बचे हुए हड्डी के ढांचे वगैरह होते हैं ना, उन बाक़ियात में कार्बन 14 की मिक़दार कम कम होती जाती है। ज़माना माक़बल तारीख़ की लकड़ियों, कोयले, हड्डियों, जिस्मानी अज़ा वगैरह में वो कम होने के बाद किस मिक़दार में बाकी रह गया है उसे तजुर्बागाह में ले जाया जाता है और नापा जाता है। फिर उस पर जांच पड़ताल करने के बाद बाकी रह जाने वाले कार्बन 14 की बुनियाद पर उस चीज़ की उम्र का शुमार करना मुमकिन हो जाता है। यानी फिर पता लगा लिया जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। किसी चीज़ की उम्र का तयन करने के इस साइंसी तरीके को कार्बन 14 तरीका कहते हैं। ज़माना शुमारी के दूसरे और कई तरीके हैं, लेकिन कार्बन 14 तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके और ज़माना शुमारी के दीगर तरीक़ों की बुनियाद पर जिन चीज़ों का ज़माना तय हो जाता है, तो जिस तहज़ीब के लोगों ने वो चीज़ें बनाई उसका ज़माना यकखत्ती ज़माने के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह से और एक तरीका है, देखो दरख्त जैसे जैसे बढ़ता है उसके तने में हर साल एक परत का जो है इजाफा होता जाता है। इन परतों का शुमार करने पर दरख्त की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो लकड़ी की चीज़ों की उम्र का शुमार करने में भी इससे मदद मिलती है। इस तरीके को लकड़ी की परतों से ज़माना शुमारी का तरीका कहते हैं। तो बच्चों अगर ज़माना शुमारी की बुनियाद पर जो बाक़ियात मिले हैं, वो बाक़ियात और जिन तहों में वो दस्तयाब हुए हैं वो मिट्टी की तहें कितने साल पहले की हैं मालूम हो जाए तो उनका ज़माना अंदाज़न तय किया जा सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर ज़माना शुमारी के तरीके से ये नतीजा निकाला गया कि कोई मिट्टी का बर्तन 5000 साल पुराना है, तब हम कहेंगे कि इस बर्तन का ज़माना 3000 साल कब्ल मसीह है। इस बर्तन का ताल्लुक़ जिस तहज़ीब से होगा उसके बारे में कहा जा सकेगा कि उस तहज़ीब का ज़माना 3000 साल कब्ल मसीह का है। प्यारे बच्चों
اس پورے ویڈیو کو اچھی طرح سے بار بار دیکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نزہت تنویر احمد باگلکوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر، مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول، کڑوئی، ضلع رتنا گیری۔